Hey guys, welcome back to the channel. So today is the third day in Manali. So we are going to explore some temples in Manali town and some other places. So here we are at Hidimba Temple, one of the most beautiful temples in India. So it's different structure of Hidimba Temple, and they're going to play for Kasol today. So Kasol, Santosh, Kullu, Muntar, Manikaran. So that's the plan for today. We are going to go to Parvati Valley, explore the beautiful roads throughout the Parvati Valley to lush green trees. And first stop is Kasol, then Manikaran, then Gurudwara Sahib. Here we are going to have a beautiful visit to this place, and then Gurudwara, and spend some peaceful time here and have langar here also. And after visiting Manikar, we are going to leave to one of the most beautiful towns or villages, rural Himachal, that is Tosh. So this is a very beautiful, typical Himachali village. We are going to explore this beauty of Himachal here and spend some time at this hostel at Tosh. And then we are going to leave back to Delhi today. So this is the last day of my Himachal trip, and the last but not the least. So this beautiful village, exploring and spending my own time here. So please watch this video till the end. I'm going to cover a lot of places in Parvati Valley today, and Kasol, Manikaran, Tosh. So here we are. So this is the beautiful morning in Manali. We stayed in Manali yesterday, old Manali yesterday. We shifted to the Mustache Hotel. So I went to early morning, approx 7:30. I went to this beautiful Hidimba temple, so which is one of the most popular places in Manali town. So I think if you go Manali, don't miss this place at all. This is a must visit place, and you'll get to hear a lot about this place. This is just in the center of the town, so it's not that far. It's also, so from Mustache it's hardly 5 minutes of walk. तो यहाँ पे अभी मैं अब जस्ट खुल रहा था सब मार्केट वगैरह. सो अभी मैं जल्दी आया था यहाँ पे टेम्पल विजिट करने, बिकॉज मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट एनी टेम्पल. So I just thought let's go and explore the temple now. And यहाँ पे सुबह थोड़ी भीड़ थी, क्योंकि आई थिंक जनरली सभी लोग सुबह के टाइम पे ही आते हैं टेम्पल विजिट करने के लिए. सो लुक एट दिस एंट्रेंस ऑल्सो, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, एंड लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टिपिकल हिमाचली मंदिर लगता है ये. शायद आपने बहुत सारे मूवीज़ में भी देखा होगा. आई थिंक ये जवानी है दीवानी है, लॉट ऑफ अदर मूवीज़. सो ये देखने बहुत बार मिला होगा आपको सीन्स में, बट काफ़ी सुंदर था. यहाँ पे अंदर अलाउड नहीं था, बट आई जस्ट गिव यू अ राउंड टूर ऑफ द टेम्पल हियर. तो इसका मतलब ये ऊपर का जो छत है वो अलग ही मतलब स्ट्रक्चर, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में आप पाए जाते हैं जनरली. सो काफ़ी अलग था ये एक्सपीरियंस. एंड look at this lush green garden or jungle just beside this temple. So this makes it a very beautiful scene. एंड सुबह के टाइम पे तो और भी अच्छा लगता है, क्योंकि धूप निकल रही होती है एंड काफ़ी मतलब एनीवेज ये हाइट पे होने की वजह से. और ये आप यहाँ पे आप देख सकते हो, मतलब ये यहाँ पे सीन लगाए हुए हैं, क्योंकि हिडिम्बा द नेम इटसेल्फ साउंड्स लाइक ये मतलब अलग ही टाइप का ये है. मतलब ये जो देवी थी, तो इसका आई थिंक घटोत्कच का जन्म भी यहाँ पे ही हुआ था. सो और यहाँ पे ऊपर जब आप देखोगे मतलब जंगल ही जंगल है, मतलब साइड में पूरा. और ये जो पेड़ है, आई थिंक नॉट श्योर, ये आई थिंक पाइन्स के पेड़ है, सो नॉट श्योर, बट बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पे. मतलब हिमाचल के पहाड़ों के पेड़ जैसे होते हैं वैसे ही. और अंदर अलाउड नहीं था कैमरा, सो आई कुडंट शूट इनसाइड, बट
Now let me take you to the garden side, and maybe let me first show you what is the history of this temple. There was a board here about Hidimba temple history. So हिंदी में आप यहाँ पे पढ़ सकते हो और इंग्लिश में भी है. So ये पूरा हिस्ट्री क्या था इसका, कैसे ये सेटअप हुआ था यहाँ पे, and in English also, as you can see. So we'll get to read about this place, what was the history of this place, basically how this temple was set up. And again the next place was Ghatotkaч Mandir, basically. So I think यहाँ पे घटोत्कच का they say, the people say, I think जन्म हुआ था. So हम उसी तरफ जा रहे थे अभी. So here I came alone. It was early morning, so my other friends were getting ready here to leave for Kasol. So meanwhile I thought, let's explore, because this was remaining, this place was remaining. So I thought of going there and visiting this Ghatotkaч temple also. So यहाँ पे भी घटोत्कच का मतलब ये अगेन ये इसका हिस्ट्री आपको पता चल जाएगा. दुंगरी विलेज मनाली. सो माइटी वॉरियर, आज आपने सुना ही होगा घटोत्कच की कहानी, तो वो पूरा यहाँ पे आपको पढ़ने मिल जाएगा. एंड हियर वी आर. आई केम बैक टू पिक माई फ्रेंड हियर एंड वी हैड अ yummy parathas in the morning and then we left for Kasol. So it was going to be a long day. बहुत लंबा दिन होने वाला था क्योंकि हमें बहुत सारे प्लेसेस कवर करने थे आज. और बाइक राइड was again bike ride day. We hired Bullet, Royal Enfield Bullet for the day, and look at this beautiful day. It was pure, I mean it's mostly sunny day, so no clouds as such. And ये साइड में रिवर के साइड में look at this beautiful roads, the कुल्लू मनाली हाईवे. सो काफ़ी सुंदर रास्ता ही है, मतलब the road is completely enjoyable right till मंडी I think. तो मतलब आई थिंक रिसेंटली कंस्ट्रक्ट हुआ था, मतलब मॉडिफाई हुआ था, रिपेयर किया था इन्होंने. सो काफ़ी अच्छा था. एंड दिस इज़ अ परफेक्ट रूट फॉर अ बुलेट राइड. सो नाउ वी वर हेडिंग टूवर्ड्स कसौल. सो ये रास्ता जाता है भुंतार से, कुल्लू से. सो भुंतार से लेफ़्ट लेना पड़ता है. तो साइड में ये पूरे रास्ते में साइड में आपको रिवर मिल जाएगी. मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेसेस भी है रिवर के साइड में जहाँ पे आप रुक के फ़ोटोज़ वगैरह ले सकते हो, एंड बहुत सारे फ़ोटो पॉइंट्स भी है. एंड दिस इज़ दैट कुल्लू टाउन बेसिकली. यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट पॉइंट्स है, बट एज़ वी हैड लेस टाइम, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, वी कुड नॉट स्टॉप हियर टू एक्सप्लोर कुल्लू टाउन. सो हम आगे बढ़ गए, वी वेंट अहेड एंड सो भुंतार से लेफ़्ट लेना था. सो वी टुक लेफ़्ट फ्रॉम भुंतार एंड दिस वॉज द रोड टुवर्ड्स Kasol. So this is completely Parvati Valley. This is Parvati River just beside this road. आखिरी तोश तक आई थिंक ये रिवर जाती है. तो रोड के साइड में आपको कंटिन्यूसली ये नदी मिल जाएगी. बहुत सारे अच्छे व्यूज़ भी मिल जाएंगे, एज यू कैन सी इन द कैमरा राइट नाउ. सो ये पूरा मतलब वादियों वाला, पहाड़ों वाला सीन था. और हालांकि धूप निकल चुकी थी, बट काफ़ी ठंडा वेदर था. तो इट वॉज़ क्वाइट एन्जॉयबल. बीच बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गाँव मिल रहे थे. बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइज टू हायर बुलेट और एनी अदर बाइक रादर दैन गोइंग बाय कार, क्योंकि ये जो रास्ता आप देख सकते हो, मतलब सामने जो पहाड़, वादियाँ, वैलीज एंड दिस रोड्स मेक इट अ टिपिकल रोड ट्रिप. ओके, सो एंड थ्रू दिस जंगल्स राइट, एंड मे बी दिस नीलगिरी और पाइन ट्रीज़. तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है जब आप बाइक राइड करते हो. आपको पूरा खुला दिखता है आसमान, तो बहुत ही अच्छा लगता है. आई कैन जस्ट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स. सो एंड अगेन एट दी जस्ट बिसाइड दिस जंगल से जाते हुए पार्वती रिवर, और बहुत सारे आपको यहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह मिल जाएंगे रास्ते में. जैसे कसोल का एरिया स्टार्ट होता है, पार्वती वैली का एरिया स्टार्ट होता है, बहुत सारे कैफ़ेज़, टेंट्स, बहुत सारे प्लेसेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स भी मिल जाएंगे आपको. यू कैन स्टे एनीवेयर बेसिकली, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. एंड हियर वी मेट आवर बडीज़ हियर. सो आप मतलब इस साइड का अलग ही है. मतलब जब आप कसोल के साइड में जाते हो, आपको मतलब नॉट श्योर, मतलब ये कुत्ते बहुत सारे फ्रेंडली डॉग्स आपको मिल जाएंगे. मतलब साथ में आपके साथ में डायरेक्टली घूमने लगते ही है. दे डोंट नीड एन इंट्रोडक्शन. सो हियर वी आर ऑलमोस्ट नियर कसोल.
we took a break, a 5 minutes break, and then we went ahead. So this is the Kasol town. We were planning to stop here while coming back. We wanted to go to Tosh first, so we not stop here as such. So, but this is a very beautiful town, Kasol. This is quite famous. You know what for? I can't say that in video, but आपको बहुत सारे यहाँ पे एंजॉय करने के तरीके मिल जाएंगे. तो बट हम नहीं रुके यहाँ पे क्योंकि हमें मणिकरण भी जाना था, हमें आगे तोश भी जाना था. सो वी वेंट अहेड एंड मणिकरण वॉज आई थिंक हार्डली 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर अहेड. वी वांटेड टू गो टू गुरुद्वारा. सो हम यहाँ पे आगे गए गुरुद्वारा के लिए. एंड कसोल में कसोल से आगे आई थिंक 15-20 मिनट्स बाद ही मणिकरण आता है, ज़्यादा दूर नहीं है. और यहाँ का गुरुद्वारा फेमस है एंड लंगर अगेन. सो हम यहाँ पे, और ये टाउन भी बेसिकली बहुत ही सुंदर जगह है ये. यहाँ पे आने के बाद मतलब अलग ही फील आता है, स्पिरिचुअल एंड इट्स वेरी डिफरेंट फीलिंग. कांट एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स. बट यहाँ पे गुरुद्वारा जैसे अमृतसर का काफ़ी अलग है, बट ये भी काफ़ी अलग है. बट यहाँ पे दिस प्लेस बिंग एट दिस मच हाइट. सो ठंडी हवा एंड फिर पीछे बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, और जस्ट बिसाइड द रिवर सामने नदी मिल जाएगी. तो नदी के ऊपर से ही ये ब्रिज जाता है. तो ऊपर आप देख रहे हो पहाड़ पूरे. तो ये बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा हो जाता है, और काफ़ी तेज़ हवा चल रही होती है यहाँ पे. सो विच मेक्स इट परफेक्ट प्लेस टू बी. सो अभी हम यहाँ पे अंदर जा रहे थे, बट ये लुक एट दिस पार्वती वैली. तो ये पार्वती रिवर है. पार्वती के रिवर के जस्ट साइड में ही गुरुद्वारा है. और क्योंकि बर्फ़ मेल्ट हो रही थी तो काफ़ी ठंडा पानी था यहाँ पे, और बहुत पानी बह रहा था, और काफ़ी फोर्स ज़्यादा था, तो नीचे जाने का परमिशन नहीं था. सो बट वी वेंट अहेड, वी वेंट इनसाइड द गुरुद्वारा, एंड आई वाज जस्ट सीइंग दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप. यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट किया होगा उस ज़माने में. काफ़ी पुराना गुरुद्वारा है ये. एंड आई मीन वन ऑफ द मोस्ट फेमस गुरुद्वाराज इन द वर्ल्ड बेसिकली. तो यहाँ पे अभी हम अंदर जा रहे थे, और गुरुद्वारा साहिब में यहाँ पे बहुत भीड़ होती है जनरली वीकेंड्स पे. तो वीकडेज पे आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू टू विजिट दिस प्लेस ऑन वीकडेज. एंड जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लंगर हो रहा है एंड ऊपर गुरुद्वारा है. सो लेट्स गो फर्स्ट टू गुरुद्वारा एंड सी अंदर कैसा है. सो काफ़ी पीसफुल, काफ़ी काम था यहाँ पे. मतलब बहुत ही मस्त लग रहा था, शांत लग रहा था, स्पिरिचुअल. So must visit place for sure. And look at this view just outside the window. गुरुद्वारा के यहाँ से आपको पार्वती नदी का दर्शन हो रहा है. So काफ़ी मस्त लग रहा था यहाँ पे, शांत, और मतलब ध्यान करते रहो यहाँ पे आके, और जस्ट सुनते जाओ. यहाँ पे गुरुबानी पढ़ते रहते हैं, तो गुरुबानी सुनो. आई थिंक 15-20 मिनट स्पेंड करो. इट्स वर्थ इट गाइस. सो यहाँ पे भी हमने भी प्रसाद भी बहुत ही मस्त रहता है यहाँ पे, बहुत ही टेस्टी प्रसाद रहता है. तो 15-20 मिनट यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, और फिर आगे जा सकते हो. और ये अब हम लंगर पे जाने वाले थे. सो इट इज़ वेरी टेस्टी फूड, कढ़ी चावल और करी. सो काफ़ी टेस्टी खाना था. एंड देन वी वर प्लानिंग टू लीव गुरुद्वारा नाउ. इट इज़ टाइम टू गो टू तोश विलेज.
बट यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था, नदी की तरफ देखते। और मैं यहाँ पे काफ़ी मस्त लग रहा था, यहाँ पे काफ़ी शांत लग रहा था। और ये वो पार्वती नदी है जो आगे जाती है कुल्लू की तरफ और मिल जाती है बड़े बड़े नदियों को। और इस साइड वो आती है पार्वती वैली से, इस साइड ही तोश है। सो ये पूरा पार्वती वैली है। और ये नीचे मलाना साइड और जो जो कि मनाली के साइड के पीछे, मतलब बहुत दूर है यहाँ से हालांकि, बट उस साइड के ये पहाड़ है। और यहाँ पे गुरुद्वारा की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे पढ़ने मिलेगी। So you get to read all the history of this Gurudwara and some spiritual things you will get to read about. So यहाँ पे एक 5-10 मिनट रह के पढ़ सकते हो आप ये। It's a worth read. और so we spent some time here and it was now time to go ahead to our destination, which is Tosh. Tosh is the the end, the last most village in Parvati Valley. तो वही हम जा रहे थे. So we were going to that direction and look at these roads. These roads were also very clean and very newly built. So और यहाँ से मणिकरण से आगे आपको बहुत ही कम भीड़ मिलेगी क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं जाते तोश. बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि दिस बिट फार फ्रॉम मणिकरण ऑल्सो. बट तोश के यहाँ से आपको, जैसे आप जाते हो तोश के साइड पे, आपको बर्फ़ के पहाड़ दिखने शुरू हो जाएंगे. सो यू गो क्लोज़र, एज यू गो क्लोज़र टू तोश विल गेट टू सी दिस स्नो कैप माउंटेन्स हियर. यहाँ पे भी तोश में भी बर्फ़ होती है, बर्फ़ गिरती है. सो काफ़ी सुंदर नज़ारा होता है तोश. एंड इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर अ रूरल टिपिकल हिमाचली विलेज, then this is a must visit place for sure. You can spend a week, 2 weeks, more than 2 weeks, also a month doing vacation because ये जगह ही वैसी है, मतलब अलग ही है, out of the world. So बाद में रास्ता थोड़ा ख़राब होने वाला था, but make sure whenever you are going here keep petrol in reserve. I mean keep petrol in backup because यहाँ पे पेट्रोल पम्प नहीं है. हालांकि आपको पेट्रोल मिल जाएगा ब्लैक में, बट विच इज़ क्वाइट कॉस्टली हियर. सो 1.5 टाइम्स आपको मिल जाएगा. एंड दिस वाज अ रेस्टोरेंट, अ कैफ़े जस्ट बिसाइड द वैली एंड जस्ट इन बिटवीन दिस वाटरफॉल. तो झरने के बीचों बीच ही एक कैफ़े था, बहुत ही मस्त था. हालांकि हमने मैगी और कॉफ़ी पी, बट वो भी काफ़ी अच्छी थी. नॉट श्योर, बट मैगी खाने का मज़ा ही अलग होता है पहाड़ों में. So do stop here at this cafes just in between the route. काफ़ी अच्छे हैं. Then we went ahead and looking at this view of the snow-capped mountains. सामने नज़ारा देखते हुए we reached almost the base village near Tosh, which is बरशैनी. तो यहाँ पे आपको यहाँ तक आपको बस मिल जाती है, बस भी मिल जाती है जो कि कुल्लू से आती है, मनाली से आती है. तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. आई थिंक लास्ट बस यहाँ पे आने के लिए 4 बजे है, जो कि 5 बजे यहाँ से वापस जाती है. सो दैट इज़ द लास्ट बस फ्रॉम हियर. Just make a note of the bus timings in case you are relying on that. There are some cab drivers also, but they cost a bit higher. So here we are going up from Barshani to Tosh. Tosh थोड़ी ज़्यादा हाइट पे है, थोड़ा ऊपर है. और look at this Khir Ganga hills and at the back these are, I think a lot of treks are also here. This is the end of Parvati Valley basically. यहाँ से आगे सारे snow capped mountains ही है, but this is the last village basically. सो तोश की एक अलग ही बात है. ये आई थिंक एक डैम, जैसे कि आप देख रहे हो पीछे नदी आके डैम पे ये हो जाती है. तो यहाँ पे नीचे एक डैम भी है. और तोश जाने के लिए ये रास्ता इट्स नॉट अ टार रोड एज सच. सो ये काफ़ी ऊपर है. तो यहाँ पे प्रेफर अ बुलेट रादर देन अ स्कूटी. स्कूटी भी जाएगी बट बहुत, मतलब
बहुत परेशानी होगी आपको जाने के लिए। तो हियर ऑलमोस्ट वी रीच्ड दिस तोश विलेज। लुक इज ब्यूटीफुल विलेज नाउ। काफ़ी ऊपर, काफ़ी रिमोट है, मतलब काफ़ी मतलब रिमोट एरिया में आता है ये। आसपास ज़्यादा विलेजेस नहीं है, बट यहाँ पे आप आके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। कैफ़ेज़ मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, काफ़ी सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे। होम स्टेज, नॉट प्योर होटल्स सच, मतलब 4-5 होटल्स है, मतलब टिपिकल होटल्स आपको सारे फैसिलिटीज़ के साथ, बट प्रेफर होम स्टेज वेल कमिंग एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू ऑफ स्नो कैप माउंटेन्स। ये आई थिंक मनाली के पीछे वाला एरिया है, काफ़ी पीछे वाला एरिया है ये, क्योंकि मनाली के वशिष्ठ के बैक साइड का, तो यहाँ से वो स्नो कैप माउंटेन्स का रेंज स्टार्ट होता है। तो तोश में भी बर्फ़ होती है, बट हालांकि अभी दिस वाज मार्च एंड, सो अभी बर्फ़ नहीं थी, बट स्नोफॉल होता है तोश में भी। सो यू कैन try coming here in winters also, basically to explore both winter season at Tosh and snowfall at Tosh, and maybe you can come in mid-March, after mid-March here also, ताकि आपको पूरा हर चीज़ एक्सप्लोर करने मिले, ट्रैक्स एक्सप्लोर, या फिर बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं फिर बाद में। तो ये तोश विलेज है, दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द विलेज। और आपको फुटपाथ राइट टिल द एंड मिलेगा, जहाँ पे ये गाँव ख़त्म हो जाता है। So this is where the footpath starts. It goes right till the end where the village ends. This is almost, I think, 2 or 3 kilometers of a track. यहाँ से ही आपको बहुत सारे स्टे ऑप्शंस, रेस्टोरेंट्स शुरू हो जाएंगे एंड कैफ़ेज़ भी शुरू हो जाएंगे यहाँ पे आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये गलियों से जाता है टिपिकल। सो ये अभी ये जो रास्ता है पूरा आप एंड तक देख रहे होंगे, वहाँ तक गाँव है, वहाँ तक जाता है। तो रास्ते में बहुत सारे आपको यहाँ पे हिमाचली लोग मिल जाएंगे, और मतलब काफ़ी फ्रेंडली लोग हैं। मतलब इन केस यू आस्क फॉर एनी हेल्प दिल टेक यू देयर डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि मतलब वो रास्ता बता देंगे, आपको पूरा वहाँ तक लेके भी जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंडली लोग आपको बीच में मिल जाएंगे। एंड जैसे कि आप देख रहे हो, ये जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के घर दिखाई दे रहे हैं। जैसे होते हैं ना गांव में घर, और कैफ़ेज़ भी है बहुत सारे यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे खाने के भी, एंड इवन कॉन्टिनेंटल, मे बी चाइनीज़ एंड फास्ट फूड, एवरीथिंग विल गेट हियर इवन दो दिस इज़ अ रिमोट विलेज। बट बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और मतलब ऐसे बूढ़े लोग गप्पे मारते हुए, या फिर मतलब जैसे गाँव में जैसे माहौल होता है राइट, वैसे आपको देखने मिलेगा। काफ़ी अलग अलग ही यहाँ पे माहौल होता है। तो और आई थिंक दिस इज़ द सेंटर ऑफ द विलेज वेयर देयर इज़ अ टेम्पल। तो यहाँ पे एक मंदिर है गाँव के बीचों बीच। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आपको बच्चे खेलते हुए मिल जाएंगे, बहुत सारे। तो काफ़ी मतलब मस्त लगता है यहाँ पे गाँव में आने के बाद। टिपिकल पहाड़ों में जो होता है जैसे कि, और बीच मतलब ये यहाँ से ये जो स्नो कैप माउंटेन्स का व्यू मिल जाता है वो काफ़ी अलग है, मतलब बहुत ही मस्त लगता है यहाँ से। नॉट श्योर ये विंटर में कैसा लगता है, विंटर में भी काफ़ी खूबसूरत होता होगा यहाँ पे स्नोफॉल। और मतलब जस्ट बिसाइड योर होम स्टे आप स्नोफॉल और स्नो कैप माउंटेन्स आपको देखने मिलेंगे, तो काफ़ी मज़ेदार होता होगा तब भी। बट अभी जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, मतलब अलग अलग तरह के घर हमें देखने मिल रहे थे। और हर मतलब 120-200 मीटर्स पे आपको एक ग्रॉसरी शॉप मिल जाएगी, इन केस यूर कुकिंग ऑन योर ओन और सेटिंग अप अ टेंट। तो टेंट सेटअप करने के लिए भी काफ़ी मतलब जस्ट बिसाइड द होम स्टेज आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। और आई वुड सजेस्ट यू टू स्टे इन होम स्टे, और मे बी गाँव वालों के साथ भी आप रह सकते हो। एंड लुक एट दिस व्यू गाइज, आई मीन दिस वाज जस्ट अमेजिंग। बहुत ही सुंदर लग रहा था। नॉट श्योर कैमरा में कैसे कैप्चर हुआ है कलर्स वगैरह, बट यहाँ से जो व्यू मिल जाता है राइट, वो अलग ही है। एंड वी वर ऑलमोस्ट देयर रीचिंग टू वेयर वी वर प्लानिंग टू स्टे। तो अभी हम पहुँचने वाले थे। वी आर ऑलमोस्ट वॉकड अराउंड 1 किलोमीटर अप द हिल। सो थोड़ा थकान हो रही थी, बट
पहुंचने ही वाले थे। तो यहाँ पे आपको हर मतलब जगह पे बोर्ड्स भी मिल जाएंगे बेसिकली, कहाँ पे क्या है, कौन से कैफ़ेज़ कौन से डायरेक्शन में है और कौन सा पॉइंट कौन से डायरेक्शन में है। तो आपको ऐसे बीच में मिल जाएंगे बहुत सारे। इन केस आप गुम हो जाते हो तो आप ये रेफ़र कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा अच्छे से नहीं चलता है, मतलब नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क नहीं चलता है, बट वाईफाई आपको मिल जाएगा हॉस्टल्स में वगैरह। बट नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है गाइस, सो बट चिंता की कोई बात नहीं है, आप गाँव वालों से पूछ सकते हो। एंड ये मतलब पहाड़ पे होने की वजह से ये जो सुंदर फूल एंड ऑल दिस थिंग्स, ये काफ़ी अलग अलग था, तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था ये। एंड वी आर ऑलमोस्ट हियर, सो दिस वाज आवर स्टे। तो यहाँ पे अभी हम रहने वाले थे। सो आई विल जस्ट यू कैन सी इन द कैमरा ऑल्सो बेसिकली यहाँ पे कहाँ पे हम गए थे और इसका नाम क्या था, थर्ड आई व्यू समथिंग। और यहाँ पे आपको बस की बुकिंग का भी ऑप्शन था, और यहाँ पे हॉस्टल का भी है और रूम्स का भी आपको स्टे मिल जाएगा। और हार्डली आई मीन रूम्स का भी 450 रुपीज़ रेंट था पर डे, सो विच वॉज नॉट दैट हाई, मतलब आप अकेले भी अफोर्ड कर सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर एज दैट ऑफ हॉस्टल्स इन कसौल एंड मनाली एंड धर्मशाला। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर। सो उसी कॉस्ट में आपको एक कंप्लीट रूम मिल जाएगा 2 लोग के लिए। तो ये तोश में रहना काफ़ी सस्ता है, सो यू कैन प्लान लॉन्ग स्टे। और जस्ट आउट ऑफ द बैल्कनी दिस वाज द व्यू बेसिकली। आई विल जस्ट टेक यू द रूम ऑल्सो, मैं आपको रूम भी दिखाता हूँ, बट यहाँ से बैल्कनी से ये वाला व्यू मिलता है और बीच में ऐसी ठंडी हवा। सो काफ़ी मस्त था यहाँ पे। और यहाँ से अभी हम आए थे, अभी हम वापस जाएंगे और देखेंगे अपना रूम कैसा है। तो काफ़ी थकान भरा ट्रैवल था, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम मनाली। सो लेट मी शो यू द कॉमन रूम फर्स्ट। यहाँ पे आप बैठ सकते हो, और लेट मी जस्ट गो नाउ एंड शो यू आ रूम हियर। सो 450 रुपीज़ में काफ़ी अच्छा रूम मिल रहा था। लेट मी जस्ट शो यू सेपरेट वॉशरूम्स वगैरह। एंड सो दिस वाज द रूम। काफ़ी अच्छा था, मतलब ये गांव के हिसाब से काफ़ी अच्छा था और रेंट के हिसाब से तो। एंड जस्ट आउट ऑफ दिस द स्नो कैप माउंटेन्स व्यू आउट ऑफ द बैल्कनी। एंड आपको यहाँ पे डाइनिंग टेबल्स भी थे। एंड दिस व्यू आई वाज टॉकिंग अबाउट बेसिकली, जस्ट आउट ऑफ द बैल्कनी ये व्यू। और क्या चाहिए 450 रुपये में। सो इसके बाद सो वी फ्रेशनड अप एंड वी वांटेड टू गो अहेड इन दैट डायरेक्शन बेसिकली, जहाँ पे आइस स्केटिंग के लिए लेके जाता है या फिर स्नो ट्रैक रहता है इस साइड पे। एंड उस साइड पे बैक साइड में आप देख रहे हो वो स्नो कैप माउंटेन, उस साइड खीरगंगा ट्रैक है, तो विच रिक्वायर्स ऑलमोस्ट 1 डे फॉर द कंप्लीट ट्रैक। बट अभी हम उस साइड जा रहे थे बेसिकली जहाँ पे विलेज का एंड हो रहा था। सो वी वर गोइंग दैट डायरेक्शन बेसिकली वेयर द विलेज वॉज एंडिंग। तो आई जस्ट वांटेड टू सी एंड द व्यू फ्रॉम देयर एंड सम वाटरफॉल्स एंड आगे जाके क्या है, कहाँ से आगे रास्ता जाता है। एंड आई वांटेड टू टेक सम ड्रोन शॉट्स ऑल्सो हियर। सो आई वाज जस्ट गोइंग इन दैट डायरेक्शन। और आई थिंक वी वॉकड अप्रॉक्स 1 किलोमीटर फ्रॉम आवर रूम। बट आगे हालांकि कुछ नहीं था, मतलब रेस्टोरेंट भी कम मिल रहे थे। तो बिफोर इट वॉज गेटिंग डार्क वी वांटेड टू कम बैक एंड मे बी explore some cafes inside the village, so which we saw while coming here, right? So again we came back here towards the room, towards the hostel. तो यहाँ पे I thought कि ड्रोन उड़ाया जाए, so I'll just I think the drone shots are at the end of the video, आपको कुछ देर में दिख जाएंगे in the end of the video. But right now we are going towards the cafe. Wanted to because we were hungry. काफ़ी थकान भरा ट्रैवल था, ऑलमोस्ट 4 आवर्स फ्रॉम मनाली 100 किलोमीटर्स, और हमने बहुत ही कम खाया था यहाँ पे आते। सो अभी बहुत भूख लग रही थी, सो जल्द से जल्द जाके एक्सप्लोर करना था। सो वी अगेन एज यू कैन सी ये सेंटर प्लेस, यहाँ पे बच्चे खेलते हुए दिख रहे थे। तो जैसे कि मैंने कहा ये मतलब गाँव वालों के लिए और बच्चों के लिए पहाड़ पे रहने के बाद ये सब पूरा ग्राउंड नहीं मिलता है ऐसा बड़ा, बट ये सेंटर प्लेस था, यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे।
काफ़ी अच्छा था मौसम. And we went ahead to the Shiva Cafe, I think, which we saw while coming here. And let's go ahead, and this was the cafe basically. काफ़ी अच्छा cafe था, quite affordable. Shalom Cafe, not Shiva Cafe but Shalom Cafe, but काफ़ी अच्छा था. बहुत सारे options थे जैसे कि मैंने कहा, and with this view basically, so it was a perfect place to be. And then we had snacks here, and then we went ahead. We wanted to go at the parking place basically where we parked our bike, and हम नीचे जाके कुछ सामान लेना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे नीचे पेट्रोल मिल रहा था. वी वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ पेट्रोल, तो पेट्रोल पूरा ख़त्म हो चुका था. सो थोड़ा गोइंग बैक टू बरशैनी, जैसा कि मैंने कहा वहाँ पे बस मिल जाती है. वो बेस विलेज है जहाँ से ऊपर तोश के लिए रास्ता आता है. सो हियर वी आर नाउ गोइंग बैक टू बरशैनी. दिस वाज द बेसिकली प्लेस वेयर वी पार्क्ड आवर बाइक्स व्हाइल कमिंग हियर. और यहाँ से ही नदी एक शुरू हो जाती है, तो यहाँ से ब्रिज मिलता है आपको जाते वक्त. और पार्किंग का यहाँ पे आई थिंक कॉस्ट लगता है, आई थिंक 50 रुपीज़ पर डे और समथिंग लाइक दिस. आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इतना याद नहीं आ रहा है. बट 50 रुपीज़ और समथिंग यहाँ पे पार्किंग का चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्क करके आगे जाना पड़ता है. आगे बाइक नहीं जाती है पूरे विलेज तक. सो वी आर नाउ गोइंग बैक टू बरशैनी. लेट मी शो यू द रूट हियर. सो वाइल कमिंग हियर इतना अच्छा व्यू नहीं मिल रहा था, बट वाइल गोइंग बैक पूरा व्यू मिल रहा था बेसिकली सामने का. वो स्नो कैप माउंटेन्स है ना, उस साइड लेफ़्ट साइड जो नीचे है वहाँ पे डैम है, और वहाँ पे एक्चुअली खीरगंगा ट्रैक स्टार्ट होता है. तो खीरगंगा ट्रैक के लिए पूरा दिन लग जाता है, तो मेक श्योर यू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हैव सम गाइड हियर. बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, मतलब इतना भीड़ नहीं होता है एज दैट ऑफ मनाली एंड द फेमस ट्रैक्स नियर बाई मनाली. बट ये आपको गाइड लगेगा यहाँ पे. सो डू टेक अ गाइड फ्रॉम द विलेज हियर एंड स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो इन अ ग्रुप. काफ़ी मस्त ट्रैक है, मैंने सुना है. सो अभी हम नीचे जा रहे हैं सामान लेने, एंड just wait for the drone shot guys. I mean those drone shots are really good. So right now we are going down again, and नीचे खा के हुए आने का प्लान है बेसिकली. रात में नीचे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, नीचे का डैम वगैरह देखेंगे, और बसेस का वगैरह इन्फॉर्मेशन, एंड बहुत सारे अलग अलग कैफ़ेज़ हैं नीचे, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे. सो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग डाउन नाउ. एंड एज यू सी एट द बैक देयर आल्सो स्नो कैप माउंटेन्स, जहाँ पे स्नो का ट्रैक होता है, आइस ट्रैक होता है. सो उस साइड वाला वो एरिया है. एंड लेट मी शो यू दिस साइड व्यू बेसिकली, जहाँ से खीरगंगा वाला ट्रैक शुरू होता है. सो जैसे कि मैंने कहा, आप ये ढलान देख रहे होंगे. यू कैन सी द स्लोप, हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी फॉर अ स्कूटी टू कम अप द हिल. सो प्रेफर एनफील्ड, प्रेफर अ क्लासिक 350 while coming here to तोश, क्योंकि रास्ता काफ़ी मतलब पत्थरों से भरा हुआ है, और अगर बारिश होती है तो you'll have the mud here also, basically it will be slippery, and you'll see you'll need a high torque bike here, high cc bike, to prefer bullet. Now we're almost here, about to reach the base village, which is Barshani. I just forgot to tell you that यहाँ तोश पे आने के लिए आपको बरशैनी से ये सुमोज जीप्स भी मिल जाएंगे बेसिकली, विच टेक अराउंड 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ समटाइम्स पर पर्सन. सो बरशैनी तक बस आती है, और बरशैनी से ऊपर तोश तक ये जीप्स आपको लेके जाती है. तो वो एक ऑप्शन है बेसिकली, इन केस यू डोंट हैव बाइक, यू आर कमिंग बाय बस हियर, देन वो आप जीप ले सकते हो बरशैनी से. एंड जैसे कि मैंने कहा, आपको रास्ते में बीच में तोश आते हुए भी आपको बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे छोटे. और दिस इज़ द डैम आई वाज टॉकिंग अबाउट. बेसिकली अभी यहाँ पे स्नो मेल्ट होना शुरू हुआ है, तो अभी तो इतना पानी नहीं है, बट इस डैम में भी बहुत पानी रहता है.
तो आई थिंक बाय मई मिड और मई एंड तक यहाँ पे पानी भर जाएगा. दिस तोश डैम. सो पार्वती रिवर यहाँ से शुरू होता है एक्चुअली. दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्वती वैली एंड हियर वी आर एट बरशैनी, द बेस विलेज. और नीचे जो पार्वती रिवर दिख रही है आपको, यहाँ से स्टार्ट हो रही है वो. And here we are in one other cafe, which is called Dev Cafe in Barshani. तो यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है और यहाँ का खाना भी बहुत फेमस है. तो यहाँ से जैसे कि आप देख रहे हो पूरा पार्वती वैली जहाँ से स्टार्ट हो जाती है तो उसका पूरा व्यू मिल जाता है. और ऑलमोस्ट 240 डिग्रीज व्यू, 200 डिग्रीज व्यू को मिल जाएगा. We had Maggie here while spending our time in the evening, enjoying with this view. So it was an amazing experience, guys. Now the drone shots are coming up, जो कि मैंने तोश में लिए. So do enjoy these drone shots, guys. If there are any comments, do let me know if I need to improve anything in the videos. But hope you enjoyed the videos. See you in the next video, guys. Bye.